ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بجلی کا بل جمع نہ کروانے کی وجہ سے قتل کر دیا۔ اگر آپ خدا سے محبت رکھتے ہیں تو پھر اپنے بھائی سے بھی محبت رکھیں۔ اس لیے اب اپنی راہیں پہچان لیں، آپ دیکھ لیں کہ آپ کس راہ پر جا رہے ہیں۔ کوئی معافی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی آپ کو چھوٹ نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی سے دعوت بھی رکھیں اور اپنی زندگی کے سارے معاملات بھی درست کر لیں۔ آپ غلط راہ پر جا رہے ہیں بھائی، آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آگے آپ چرچ میں کھڑے ہو کے عبادتیں کر رہے ہو، اگر آپ اونچی اونچی آواز میں دعائیں کر رہے ہو، اگر آپ شکر گزاری دے رہے ہو، اگر آپ اپنا تنخواہ کا 10واں حصہ خدا کے پاس لے کے آ رہے ہو۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو بجلی کا بل جمع نہ کروانے کی وجہ سے قتل کر دیا۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی گردن اتار دی۔ اس طرح کے واقعات روز ہمیں ملتے ہیں۔ یہ واقعات عدم برداشت کی وجہ سے، یہ واقعات ہمارے اندر شدید بدلے اور انتقام کی آگ کی وجہ سے۔ اس طرح کے واقعات بائبل مقدس میں بھی ہوئے تھے، جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو عداوت اور کینہ کی وجہ سے قتل کر دیا۔ یہ معاملات ہمیں ہر خاندان میں ملتے ہیں۔ ایک بڑے بھائی کی چھوٹے بھائی کے ساتھ جائیداد کی وجہ سے معاملات خراب ہیں، ان کی بیویوں کی وجہ سے معاملات خراب ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی جان کے پیاسے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں جو ہیں وہ لڑائیاں کرتے ہیں، معاملات چھوٹے چھوٹے وہ معاملات نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہوتے ہی نہیں ہیں، اور آپس میں شدید غصہ ہے، ایک دوسرے سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ لیکن مجھے بڑی حیرت آتی ہے کہ وہ بھائی جو اکیلے چارپائیوں پر سوتے ہیں، اکیلے پیار محبت سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنا چیزیں شیئر کرتے ہیں، لیکن وہ اب آ کر ایک دوسرے سے عداوت رکھنا شروع ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہو گئی ہے ان کے دل میں، ایک دوسرے کے لیے کینہ رکھتے ہیں، سازشیں بنتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے نقص نکالتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں۔ اور حیرت ہوتی ہے مجھے اس بات پہ، گالیاں دیتے کس کو ہیں؟ اپنی ماں کو۔ وہ اس کی ماں کو دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو دیتا ہے، اور ماں بیچ میں کون ہوتی ہے؟ وہ ایک ہی ہوتی ہے، بھائی جس نے آپ کو پیدا کیا ہوا ہے۔ اگر وہ باپ کو گالی دیتے ہیں تو وہ باپ کون ہوتا ہے؟ اگر بہن کو گالی دیتے ہیں تو وہ بہن کون ہوتی ہے؟ وہ دونوں کی بہن ہوتی ہے۔ تو یہ شدت شدید غصے اور انتقام نے خاندانوں کے خاندانوں جاڑ دیے ہیں، خاندانوں میں بے چینی ہے، خاندانوں میں عداوتیں ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب دو بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے یا تین بھائیوں میں لڑائی ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے پورا خاندان افیکٹڈ ہو رہا ہے۔ آج ہم بائبل مقدس میں دیکھیں گے کہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں کیا کہتی ہے کہ بھائیوں کے ساتھ ہمارا کیسا سلوک ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے ہم نکالیں گے سبھی، ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس بھائیوں سے محبت کے بارے میں کیا کہتی ہے، ان سے کینہ رکھنے کے بارے میں کیا کہتی ہے، اور ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اگر ہم بھائی سے محبت رکھیں گے تو ہمیں کیا فوائد ہوں گے، اگر ہم بھائی سے نفرت کریں گے تو اس کے ہمیں نقصانات کیا ہوں گے۔ تو سارے ان حوالات کو آج ہم بائبل مقدس سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ پہلا یوحنا کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب اور اس کی 20 آیت سے، اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں اور وہ اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جو انسان اپنا بھائی جو اس کے ساتھ رہتا ہے اس سے عداوت رکھتا ہے، وہ یسوع بھی تو آپ کا بھائی ہے۔ اگر آپ اپنے سگے بھائی سے محبت نہیں کرتے، اس سے کینہ رکھتے ہو، اس کے لیے آپ کے دل میں نفرت ہے، تو آپ خدا سے کیسے محبت کر سکتے ہو بھائی؟ آگے دیکھتے ہیں، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی
जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। जो भाई आपके साथ रहता है उसके लिए आपके दिल में कोई शफकत नहीं है। वो खुदा तो आसमानों पर बैठा हुआ है, उसको तो आपने देखा ही नहीं है, उससे कैसे मोहब्बत कर सकते हो? तो सबसे पहले अगर आप चाहते हो कि खुदा आपसे मोहब्बत करे, आप खुदा से मोहब्बत करें, तो सबसे पहले उस भाई से, उस छोटे भाई से जिसके आप रालें भी साफ करते थे, जिसके साथ आप खेलते थे, जिसको कोई मारता था, जिसको कोई बाहर उसका 2 साल लगाता तो आपको गुस्सा आ जाता था, आप गुस्से में आ जाते थे। तो अगर आप उससे मोहब्बत नहीं कर सकते तो आप खुदा से कैसे मोहब्बत रख सकते हो? इसलिए हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम सच्चे मसीह हैं, क्या हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं? अगर आप खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो फिर अपने भाई से भी मोहब्बत रखें। उसके बाद आगे हवाला पढ़ेंगे। बाइबल मुकद्दस भरी हुई है हवाला जात से। अगर आप इनसे आगाह नहीं हो तो मैं आज आपको आगाह कर देता हूं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर आप अपने भाई से अदावत रखते हो। आगे देखते हैं, देखेंगे मत्ती की इंजील 5 बाब उसके 22वीं आयत से। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा, जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत की सजा के लायक होगा। इसलिए अब अपनी राहें पहचान लें, आप देख लें आप किस राह पर जा रहे हैं। बेशक उसने आपके लिए बहुत बुरा किया है, बेशक उसने आपके लिए बहुत नफरत रखी है, लेकिन खुद यीशु मसीह खुदा आपसे कह रहा है कि जो उससे अदावत रखेगा, देखें अदावत तो यीशु मसीह से भी रखी गई थी, उसको भी कोड़े मारे गए थे, लेकिन उसने क्या कहा? खुदा इसको माफ कर। तो अगर आप एक मसीह हैं और अपने भाई से नफरत रखते हैं तो फिर आप यीशु के फॉलोअर नहीं हो सकते, आप क्रिश्चियन नहीं हो सकते। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर गुस्सा होगा वो अदालत के सजा के लायक होगा, और जो कोई अपने भाई को पागल कहेगा वो सदरे अदालत के सजा के लायक होगा। आपका हिसाब होगा भाई अपने बड़े भाई को। अगर बड़ा भाई है तो वो छोटे भाई को, जरूरी नहीं है बड़ा छोटा कोई नहीं होता, छोटे की भी इज्जत होती है, बड़े की भी इज्जत होती है। तो भाई यहां पे तो आप बच जाएंगे। फिर हम कहते हैं हम बेचैन क्यों हैं, हमारे मसाइल हल क्यों नहीं हो रही, हमारी जिंदगी क्यों नहीं बेहतर हो रही? तो भाई आपकी रूट खराब है। आपको खुदा ने मोहब्बत का पैगाम दिया था अपने बेटे को इस दुनिया में भेज के, और आप उस पर नहीं अमल कर रहे, तो आप जिंदगी में कैसे खुशहाल रह सकते हो? आगे लिखता है वो सदरे अदालत की सजा के लायक होकर जो उसको अहमक कहेगा वो आतिशे जहन्नम का सजावार होगा। तो कोई रियायत नहीं है भाई, कोई माफी नहीं है, कोई किसी किस्म की आपको छूट नहीं है कि आप अपने भाई से दावत भी रखें और अपनी जिंदगी के सारे मामला भी दुरुस्त कर लें। आप गलत राह पर जा रहे हैं भाई, आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। आगे हम एक और हवाला देखते हैं भाई। मैं यकीन करें इतने हवाला जाते हैं, मैं अब टाइम कम है वो सारे नहीं आपको बता सकता। आगे देखते हैं। हाय देखें मत्ती 5 बाब उसकी 23 आयत में, जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से दावत रखता है, बड़ी दुआएं नमाज़ें करता है, दुआएं भी करता है, लोगों को जो है लेक्चर्स भी देता है, समटाइम वो पादरी भी होता है, लेकिन वो कहता है, जो कहता है कि मैं नूर में हूं और अपने भाई से मोहब्बत रखता है, अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी में है। वो अभी तक उसको शऊर नहीं दिया, उसको पता ही नहीं है। वो चल उसको लगता है कि मेरी राहें बड़ी, मैं बड़ी तरक्की कर रहा हूँ, मैं सीधा जा रहा हूँ, खुदा की बरकतें मेरे पास हैं, मेरे बच्चे बड़े सेटल डाउन हैं, मेरे पास दौलत है, मेरे पास हिकमत है। लेकिन बाइबल मुकद्दस कह रही है वो तारीकी में चलता है। आगे, जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है, उसके अंदर शऊर है, वो तरक्की कर रहा है। बेसिकली वो इंसान तरक्की कर रहा है, वो नूर में चल रहा है, वो सीधी राह पर चल रहा है, जो अपने भाई से जो है वो मोहब्बत रखता है। और ठोकर नहीं खाने का, ठीक है, वो गिरने वाला नहीं है,
वो संभल जाएगा, खुदा उसको पकड़ लेगा। लेकिन अगर वो अपने भाई से मोहब्बत रखता है, आगे, लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी में ही चलता है और ये नहीं जानता कि कहां जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर करती हैं। हमारे हम अंधे हो गए हुए हैं, हमें नजर ही नहीं आ रहा। हमें इर्द गिर्द के लोगों ने इतना वर्गला दिया हुआ है, हमें इतना गुस्सा दिला दिया हुआ है, हमें वो रोशनी नजर ही नहीं आ रही कि हम अपने भाई से मोहब्बत रखते हैं। तो वो तारीकी ने आपकी आंखें बंद की हैं, अपनी आंखें खोल लें और अपने भाई से मोहब्बत करें, फिर आप दावा कर सकते हैं मैं अपने भाई से, खुदा से भी मोहब्बत रखता हूं। आगे देखते हैं मत्ती 5 बाब उसकी 23 आयत। बड़ा, यह भी बड़ी अहम आयत है कि हमें अपने भाई से मोहब्बत करनी चाहिए, नफरत। सुने ज़रा, अगर आप चर्च जा रहे हैं, अगर आप शायरबानी ले रहे हैं, अगर आप बड़ी दुआएं नमाजें कर रहे हैं, अगर आप बड़ा अच्छा चल रहे हैं, तो ये बात मेरी ज़हन में रख लें, ये आयत सुन लें। कहता है लेकिन अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता है, अगर आप चर्च में खड़े होके इबादतें कर रहे हो, अगर आप ऊंची ऊंची आवाज में दुआएं कर रहे हो, अगर आप शुक्रगुजारी दे रहे हो, अगर आप अपना तनख्वाह का 10वां हिस्सा खुदा के पास लेके आ रहे हो, अगर आप गरीबों की मदद कर रहे हो, अगर आप सीधी राह पर चल रहे हो, अगर आप गैर ज़बानें बोल रहे हो, अगर आप लोगों से मोहब्बत का दावा कर रहे हो, तो आपको यीशु मसीह खुद कह रहा है कि अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, दिल साफ कर ले भाई, कोई रियायत नहीं है, मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वही कुर्बान के आगे अपनी नजर छोड़ दे, उत्थे ही छड़ दो आबादियां पाता, उत्थे ही छड़ दो शुक्रगुजारियां, उत्थे ही छड़ दो बाइबल पढ़ना, उत्थे ही सब कुछ छड़ के ते पहला अपने भरा दे नाल अपनी शिकायतां निपटाओ, उन्होंने नाल जाके गल करो और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। फिर भाई कुर्बानी गुजरानोगे तो फिर ही कबूल होगी, ऐसे कोई शुक्रगुजारी और कुर्बानियां कबूल नहीं होनी आपकी। आगे हम देखते हैं कि भाइयों के साथ जो मसाइल हैं उनको हल कैसे करें। क्या हम ऐसे ही चलते जाने दें, गलत फहमियों को दूर ना करें। अगर आप चर्च जा रहे हैं, अगर आप शायरबानी ले रहे हैं, अगर आप बड़ी दुआएं नमाजें कर रहे हैं, अगर आप बड़ा अच्छा चल रहे हैं, तो ये बात मेरी ज़हन में रख लें, ये आयत सुन लें। कहता है लेकिन अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता है, अगर आप चर्च में खड़े होके इबादतें कर रहे हो, अगर आप ऊंची ऊंची आवाज में दुआएं कर रहे हो, अगर आप शुक्रगुजारी दे रहे हो, अगर आप अपना तनख्वाह का 10वां हिस्सा खुदा के पास लेके आ रहे हो, अगर आप गरीबों की मदद कर रहे हो, अगर आप सीधी राह पर चल रहे हो, अगर आप गैर ज़बानें बोल रहे हो, अगर आप लोगों से मोहब्बत का दावा कर रहे हो, तो आपको यीशु मसीह खुद कह रहा है कि अगर तू कुर्बान गाह पर अपनी नजर गुजरानता हो और वहां तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, दिल साफ कर ले भाई, कोई रियायत नहीं है, मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, तो वही कुर्बान के आगे अपनी नजर छोड़ दे, उत्थे ही छड़ दो आबादियां पाता, उत्थे ही छड़ दो शुक्रगुजारियां, उत्थे ही छड़ दो बाइबल पढ़ना, उत्थे ही सब कुछ छड़ के ते पहला अपने भरा दे नाल अपनी शिकायतां निपटाओ, उन्होंने नाल जाके गल करो और जाकर पहले अपने भाई से मिलाप कर, तब आकर अपनी नजर गुजरान। फिर भाई कुर्बानी गुजरानोगे तो फिर ही कबूल होगी, ऐसे कोई शुक्रगुजारी और कुर्बानियां कबूल नहीं होनी आपकी। आगे हम देखते हैं कि भाइयों के साथ जो मसाइल हैं उनको हल कैसे करें। क्या हम ऐसे ही चलते जाने दें, गलत फहमियों को दूर ना करें।
मेरे ख्याल से सबसे बड़े मसाइल की जो बढ़ने की जड़ होती है, हम आपस में बात नहीं, हम डरते रहते हैं कि वो अगर मैं बात करूंगा तो वो मेरे से लड़ पड़ेगा। साफ बात करें भाई, अगर कोई मसाइल हैं, आपको कोई परेशानी है तो उसके साथ साफ बात करें। अगर बाज़ बात आप अपने भाई के लिए अच्छा भी सोचना चाह रहे होते हो तो क्या होता है, उसको बुरा ही लग रहा होता है। तो आपस में चैम गोइयां करने की बजाय आप उसमें बात कर लें। बाइबल मुकद्दस क्या कहती है इस बारे में देखते हैं। अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खिलवत में बातचीत करके उससे समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। हम बात ही नहीं करते, हम क्लियर ही नहीं करते, साफ बात करें भाई ये तू गलत कर रहा है। उसके पीठ पीछे अगर आप उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो वो गलत फहमियाँ बढ़ेंगी। इसलिए साफ बात करें, यार ये मसला गलत हो रहा है, तेरी तेरी मेहरबानी है, ये उसको सॉल्व करो। उससे बात करें, बात के ज़रिए मसाइल हल होते हैं। बात नहीं करेंगे तो गलत फहमियाँ बढ़ेंगी, और गलत फहमियाँ आपके घर में ही होती हैं बढ़ाने वाले। वो अपने औरतें अपने घर में तो कहती हैं कि हाय मेरा भरा मेरे माँ प्यो दी बड़ी करदा, अपने भरावां दे नाल ओदी बड़ी लैक्स लैके, लेकिन अपने जेड़ ते देवर नूं नहीं वो पसंद करदी कि मेरे वो दोवें इकट्ठे रहन। उन्हें उन्होंने पंप कराने हुंदे ने कि तू वो तेरा भरा इंज, वो तेरा फलाण भरा टमकाना। अपने भरावां नूं इकट्ठे रहन दे दरस देंदी है, लेकिन अपने बंदे नूं नहीं चाहती कि ओहदे भरा दे नाल ओहदी सुलह होए। ते जिद्दन ओहदी सुलह हो गई उदन बुढ़ी अद्धी मर गई। इसलिए दावतें पैदा करने वाले आपके घर में ही होती हैं। बी वेरी केयरफुल। आपका भाई है, आपकी माँ के पेट से पैदा हुआ है, आप इकट्ठे रहे हो, सोचो तो सही, आपकी मोहब्बत थी, आपका प्यार था, आप चार पहियों पे इकट्ठा सोते थे। क्यों आपके दिल में अदावतें पैदा हुई हैं, क्यों आपके दिल में कीना पैदा हुआ है? आगे देखते हैं बाइबल मुकद्दस आगे क्या कहती है। अब हम देखते हैं कि भाई भाई का गुनाह करते हैं, वो गलतियां भी हो जाती हैं, गुस्ताखियां भी हो जाती हैं। बस बात का इंसान जज्बाती हो जाता है, या उसको पंप इतने कराए जाते हैं कि वो दिमागी तौर पर जो है वो मफलूज हो जाता है। तो यीशु मसीह क्या कहता है, हमें क्या करना चाहिए? हमें माफ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो देखते हैं मत्ती में से ये 33 बाब है, उसकी 18 से 21 आयत तक है। कहते हैं कि उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने अब क्या कहा कि हमें मतलब माफ करना चाहिए कि नहीं? भाई को बार बार वो आपका गुनाह कर रहा है, बार बार आपकी जो है अजियत आपको दे रहा है, तो क्या करना चाहिए? तो यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार तक माफ कर, बल्कि 7 दफा के 70 बार तक माफ कर दे। माफ कर दें एक दूसरे को, यकीन करें आपका दिल हल्का हो जाएगा। जो आपने देखें, यीशु ने भी आपको माफ किया ना, खुदा ने भी। आप भी बड़े गुनाह करते हैं, आप भी बड़ी गलतियां करते हैं। एक कदम बढ़ाएं, आज ही अपने भाई से सुलह कर लें। आपके देखना दूसरे मसाइल बिल्कुल आपकी अब ज़हनी तौर पर सुकून में आ जाओगे, आप ज़हनी तौर पर मुतमईन हो जाओगे। माफ कर दें, माफ करना सीखें। दिलों में अगर आप इंतकाम रखेंगे, अगर दिलों में आप अपना बदले की आग रखेंगे, तो बदले और इंतकाम से दूसरे भाई को नुकसान नहीं होगा, आपके अपने ज़हनी सुकून जाता है। इसलिए माफ कर दें, क्योंकि यीशु ने भी आपको माफ किया। मेरी दुआ है कि खुदा आपको हिम्मत दे कि आप बारिश का वो पहला कतरा बने जिससे आपके ख़ानदान सैराब हो जाए और आप आगे बढ़ जाएं, आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन।